Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, today the topic that we will cover inshallah in our lecture is about nucleic acids. We will inshallah explain about the different type of nucleic acids such as DNA, RNA, the basic units of DNA, which is nucleotide, what is their different parts. Inshallah we will discuss about them one by one. Content, the topic and the concept that we will cover inshallah in our topics is about review of the cell structure of nucleic acid, chemistry of nucleic acid, nucleosides and nucleotides, structure of DNA and RNA, functions of DNA and RNA, and biological importance of nucleotides. As you have studied in anatomy, that cell is consist upon a nucleus and their different organelles which are present in the cytoplasm. We perform their different functions. So inside the nucleus there is present DNA and RNA, and DNA and RNA has a different functions. Outside the nucleus there is microfilaments, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, ribosomes. Nucleus is inside the cytoplasms. Every one of these has their own functions, but our main focus is about DNA and RNA which are present inside the nucleus. So we will talk about them. This is another structure of anatomy of animal cells. They have a different organelles which perform their specific roles and present in the cytoplasms, but our main focus is about DNA and RNA which are called collectively nucleic acids, and nucleic acids are present inside the living cell and we will talk about them. So what is nucleic acids? Nucleic acid, a complex organic substance present in living cell, especially DNA or RNA, whose molecule consists upon many nucleotides linked in a long chain. न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की. ये कम्बिनेशन है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की. जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिपिड्स की जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं. इस तरह प्रोटीन की हमारे पास जो है ना वो बेसिक यूनिट्स है जिसको हम एमाइनो एसिड कहते हैं. इसी तरह न्यूक्लिक एसिड and nucleic acid are either RNA or DNA. Nucleic acid is consist upon two main groups which are DNA and RNA, and the basic structure and functional unit of nucleic acid is called nucleotides. तो एक तो हमारे पास हो गया न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड बॉम्ब ये कंसिस्ट होते हैं किस चीज़ के? न्यूक्लियोटाइड्स के. और जब न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन में जो ना एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन करे, बॉन्ड्स बना ले विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन दे आइदर फॉर्म DNA और RNA. तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर है किस चीज़ की? न्यूक्लियोटाइड की. न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड अटैच विद ईच अदर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड दे फॉर्म्स RNA and DNA. So what is nucleic acids? Nucleic acid is a complex long chain of nucleotides which is consist upon 3, 4 and so many other units of nucleotides, and nucleotides is the basic structure and functions unit of nucleic acids, and nucleic acid is either DNA or RNA. So why it is called nucleic acids? Why it is not nucleic base? We will discuss inshallah in coming slides.
तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ऑल लिविंग थिंग, जितने भी हमारे पास सेल होगा सब में न्यूक्लिक एसिड का होना ज़रूरी है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। जिसी तरह जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बात की, सब मैक्रोमॉलिक्यूल किसी न किसी बेसिक यूनिट से बने होते हैं। जिसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फ्रक्टोज से बने होते हैं, लिपिड्स हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड से बने होते हैं, प्रोटीन हमारे पास एमाइनो एसिड से बने होते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किस चीज़ से बने होते हैं? वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच is present in biochemistry. In biochemistry, we will deal with 4 macromolecules, in which 3 macromolecule we have already studied, and the 4th one is nucleic acids. So nucleic acid is a polynucleotide macromolecules. We call them polynucleotide because a large amount of and too many numbers of nucleotides may combine and forms a nucleic acid, and nucleic acid will be either DNA or RNA. Linear polymer chain of nucleotides, it may be either linear or helical structures, and it may be consist upon nucleotides. And what is the functions of nucleic acids? Nucleic acid, either DNA or RNA, they may doing 3 main functions. One is encodes, the second one is transmit, and the third one is express genetic informations. Encodes इज़ द फंक्शंस ऑफ डीएनए। इसका मतलब यह है कि डीएनए की मेन फंक्शन हमारे पास क्या है? वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है इन द लाइब्रेरी ऑफ जीन, यानी वो इन्फॉर्मेशन को जिस करेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल कोई जो है ना वो जीन्स प्रेजेंट हो, तो वो जीन कहाँ पे पाए जाते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए, एंड जीन आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. And these 2 functions, transmit and express, these are the functions of RNA. And RNA have 3 different types. One is messenger RNA, second one is transfer RNA, and the third one is ribosomal RNA. And all these have their own functions inside the cells. So nucleic acid will be either DNA and RNA. Nucleic acid have other types, but we will only talk about DNA and RNA in our topics. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की। देखिए पहले हमने बात की न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। एंड न्यूक्लिक एसिड में बी आइदर DNA और RNA, डिपेंड अपॉन देयर पेंटोज शुगर्स एंड देयर नाइट्रोजीनियस बेसिस। सो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास बने होते हैं किस चीज़ के? बेसिक यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है और वो किस चीज़ से बने होते हैं, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड DNA and RNA are made of monomers known as nucleotide. Nucleotide composed upon 3 parts. जितने भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है ना वो 3 ग्रुप्स जो है ना 1 to 3 पे जो है ना वो कंसिस्ट होते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स की 3 मेन जो है ना वो पार्ट्स होते हैं। एक है एमाइनो ग्रुप, द सेकेंड वन इज़ अल्काइल ग्रुप, एंड द थर्ड वन इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. Similarly, a nucleic acid is consist upon nucleotides, and nucleotide consist upon 3 basic structure units. तो इसमें फर्स्ट वन क्या है? वो है पेंटोज शुगर, एंड पेंटोज शुगर इज of 2 types. One is ribose and the other one is deoxyribose. And pentose sugar is just like a backbone of the human body. pentose sugar जो है ना वो एक सेंट्रल रोल जो है ना वो प्ले करती है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में। तो पेंटोज शुगर की 2 अकसाम है। इफ़ द पेंटोज शुगर इज़ राइबोज, इट मीन्स दैट अगर पेंटोज शुगर के साथ हमारे पास सिंगल OH अल्काइल ग्रुप, सिंगल फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होती है, इसको हम राइबोज कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो विद पेंटोज शुगर तो इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज. राइबोज प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? ये भी MCQ में आ सकते हैं कि राइबोज प्रेजेंट होता है RNA में, और डीऑक्सीराइबोज जो कि पेंटोज की एक टाइप है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? DNA में, और राइबोज RNA में. द सेकेंड ग्रुप इज़ फॉस्फेट ग्रुप, एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियोबेस आर नाइट्रोजीनियस बेसिस. अब ये ग्रुप क्या है? इन ग्रुप में जो है ना कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है, और ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फेंटोज शुगर जो सेंट्रल रोल्स फॉर एग्जांपल प्ले कर लेता है, ये सेंटर्स में पाया जाता है। इसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और ये 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ साथ यानी पेंटोज शुगर के साथ साथ हमारे पास जो है ना वो नाइट्रोजीनियस बेसिस भी जो है ना अटैच होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस को जो है ना हम 2 ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को हम कहते हैं पायरामाइडिन्स। रिमेंबर दिस वन कि इन प्यूरिन देयर इज़ 2 type of nitrogenous bases which is adenine and guanine, and we collectively call them purines, and adenine and guanine we call them collectively as apurines, and cytosine, uracil and thiamine we collectively call them pyrimidines. So if anyone ask in MCQ in papers that what are the component of purines and what are the component of pyrimidines, ठीक है। अब हमारे पास 2 कंसेप्ट है, एक हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसमें है फॉर एग्जांपल पेंटोज शुगर, दूसरा इसमें हमारे साथ है फॉस्फेट ग्रुप, एंड द थर्ड वन इसमें हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है। अब अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा ले तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। यानी अगर हम न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा ले तो न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। इफ वी डिटेक्ट or if we remove phosphate group from nucleotide then we will call them nucleosides। न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होता? न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ठीक है। अब MCQ में ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये पेंटोज शुगर जिस तरह मैंने आपको बताया ये सेंट्रल पे मौजूद होता है। इसके कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस, और कार्बन नंबर 5 में हमारे पास प्रेजेंट होता है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। अब MCQ में आ सकता है कि पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होता है और कौन से कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो आप सिंपली जो है ना इसका आंसर दे सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे हमारे साथ जो है ना फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये जो है ना स्ट्रक्चर है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की, कि एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 पार्ट्स पे जो है ना वो कंसिस्ट होता है। इसमें हमारे पास एक पार्ट जो है ना वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर जो कि सेंट्रल पे मौजूद होता है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होते हैं। फिर नाइट्रोजीनियस बेसिस के 2 अक़साम है, एक है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरामाइडिन्स। प्यूरिन में हमारे पास एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होते हैं, और पायरामाइडिन्स में हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है। और अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स फिर फॉस्फेट की बुनियाद पर, अगर एक फॉस्फेट है तो इसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहते हैं, अगर 2 हो तो न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट, अगर 3 फॉस्फेट अटैच करें तो हम न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट इसको हम कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड सॉरी। अगर न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने भी है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेंटोज शुगर है, इसके साथ हमने जो है ना एडिनिन का नाइट्रोजीनियस बेस अटैच किया है। ये हमारे पास अगेन फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ गुआनिन का जो है ना नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है। इसी तरह इसके साथ जो है ना साइटोसिन का, इसके साथ यूरासिल का, और इसके साथ जो है ना आइनोसिन्स का जो है ना नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। इन सब में जो है ना हमारे पास मिसिंग है कौन? फॉस्फेट ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट। सो इफ़ वी मिस और इफ़ वी डिटेक्ट अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड देन वी कॉल देम अ न्यूक्लियोसाइड्स।
अब डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस क्या है? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आरएनए और डीएनए में फ़र्क क्या है? देखें, आरएनए और डीएनए में फ़र्क दो चीज़ों की बुनियाद पे है। एक तो यह है कि इसमें पेंटोस शुगर के बेस पे, और दूसरा जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस के बेस पे। DNA and RNA are structurally different on the help of with the help of pentose sugar and with the help of nitrogenous bases। तो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो है साइटोसिन, गोअनिन, एडेनिन एंड थायमिन। दीज थ्री आर प्रेजेंट बोथ डीएनए एंड RNA। These three group nitrogenous bases are common, while the thymine is only specific with the DNA। Similarly, in RNA, cytosine, guanine, adenine, these three are common with DNA, and this group uracil is the only unique which is only present in RNA. So, these three nitrogenous bases, cytosine, guanine, adenine, these are present also in RNA, while thymine is only specific with DNA and uracil is only specific with RNA. The second one is, this is the difference on the basis of nitrogenous base. The second is on the basis of pentose sugar. Pentose sugar has two types. One is deoxyribose sugar and the other one is ribose sugar. If deoxyribose is present, then the molecule will be that of DNA. If simply ribose is present, then the molecule will be that of RNA. And the third one, phosphate group, is common both in DNA and RNA, and there is no difference in the phosphate group. So just like amino acid, every amino acid we have studied that every amino acid is different from the other amino acid with the help of only the alkyl group. The remaining two groups are constant both in every and each type of amino acid. Just like amino acids, nucleotides have three parts: phosphate group, nitrogenous bases, and pentose sugars. The phosphate group is common both in each and every type of nucleic acid, while the other one, pentose sugar and nitrogenous bases, are different। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए इज़ मोस्टली डबल हेलिकल्स, यानी इसका मतलब यह है कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ना इसी तरह डबल हेलिक्स में पाया जाता है। वाइल आरएनए इज़ मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड, ये सिर्फ हमारे साथ इस तरह सिंगल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, डीएनए का मेन रोल क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन को जो है ना हमारे साथ स्टोर कर लेते हैं। आरएनए का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। RNA does not store informations, they only help in protein synthesis। ठीक है, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके राइबोसोम्स तक पहुंचाते हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अब आरएनए की थ्री अकसाम है: ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। देखिए, ट्रांसफ़र आरएनए डीएनए से जो है ना वो मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इंफॉर्मेशन को जो है ना वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचा लेता है। और राइबोसोमल्स आरएनए ये अटैच होता है विद राइबोसोम्स, और इसका काम है ट्रांसफ़र आरएनए से जो है ना मैसेज को रिसीव करना और राइबोसोम्स को इंस्ट्रक्शन देना। वो इंस्ट्रक्शन जो डीएनए से जो है ना उसने रिसीव की है कि इस तरह जो है ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ का प्रोटीन जो है ना वो आप बना ले। तो डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास जो है ना लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरएनए का काम क्या है? आरएनए जो है ना वो डीएनए से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके राइबोसोम्स तक पहुंचाती है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म्स, और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अब टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स जो ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। देखिए, डीएनए और आरएनए they only different with the help of pentose sugar and nitrogenous bases. If the bases are present of that of DNA, then the nucleotide will belong from the family of DNA. If the nucleotide has the nitrogenous bases will belong to the family of RNA, then the nucleotide will be that of the RNA family. Similarly, these are the four nucleotides which are most common in DNA, and these are the example. The first one is deoxyadenosine 5 monophosphates, या इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडिनाइलेट या DAMP, डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट।
इसी तरह गोवानिलेट या डीऑक्सीगोवानिन मोनोफॉस्फेट, ये भी वो क्योंकि इसमें जो है ना हमारे साथ गोवानिन, इसमें हमारे साथ एडानिन, ठीक है, और वो न्यूक्लियोटाइड है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। इसी तरह क्या है डीऑक्सी साइटिडिलेट्स या साइक्लिक्स मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है DTMP, इसको हम कहते हैं थाइमिडाइलेट्स या 2-डीऑक्सी थाइमाइडिन 5 मोनोफॉस्फेट। यानी आप इसको सिर्फ रिमेंबर करें कि DAMP, DGMP, DCMP and DTMP are the example of those nucleotides which belong from the family of DNA. Similarly, these are the nucleotides which are present in RNA. So these are एडेनिन 5 मोनोफॉस्फेट, गोवानिन मोनोफॉस्फेट जिसको हम GMP भी कह सकते हैं, इस तरह साइटिडीन मोनोफॉस्फेट जिसको हम CMP भी कहते हैं, एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जिसको हम UMP भी कह सकते हैं। ये वो न्यूक्लियोटाइड है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द RNA. So you may remember that both DNA and RNA has the specific type of nucleotide which when combined with each other with the help of phosphodiester bonds, then they may form a long chains of either DNA or that of RNA. अब हमारे पास है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स? देखे हमने पहले भी जो है ना पढ़ लिया है कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास बने होते हैं मोनोमर से या स्मॉल मॉलिक्यूल से। व्हेन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर देन व्हाट्स द बॉन्ड्स which they forms with each other and these bonds which attach the molecules and forms a polymer. So in each and every macromolecule there will be a specific type of bond. For example, हमने जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा, वहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक्स बॉन्ड पाया जाता था। इस तरह प्रोटीन्स में हमारे पास जो है ना वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता था, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को या अमीनो एसिड्स को जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच करके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स को जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेता है तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहते हैं। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज़ द बॉन्ड विच अटैच द टू न्यूक्लियोटाइड्स विद ईच अदर्स एंड मेक अ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड है जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बन जाता है। और ये बॉन्ड किस चीज़ के दरमियान बनता है? ये बॉन्ड हमारे पास पेंटोज शुगर के दरमियान प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नाइट्रोजीनियस बेस के दरमियान होता है या फॉस्फेट के दरमियान होते हैं या पेंटोज शुगर के दरमियान होते हैं, किन जो है ना पार्ट्स के दरमियान होते हैं, देन यू विल आंसर देम then that phosphodiester bond is present inside the pentose sugar and phosphate groups। और इसमें हमारे साथ जो है ना वो OH का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल जो है ना वो एमिट होता है। और इस रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए जो इंजाइम्स हमारे पास यूज़ होते हैं इसको हम लाइगेज इंजाइम्स कहते हैं। अब बात ये है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया कि वाई न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। Nucleic acids are called nucleic acid because of the phosphate groups. The phosphate group has the ability to emit these hydrogen ions. When phosphate group emit these hydrogen ions, then negative charges come on the oxygen atoms. So we have studied that each molecules which has the power to produce hydrogen ion in a solution, we may call them an acids. And because of this property we call a nucleic acid as acidic in nature, not in basics. So this is the bonds which is called phosphodiester bond, and phosphodiester bond बन जाता है inside the pentose sugar and phosphate group। और इसके रिज़ल्ट हमारे साथ जो है ना वो बन जाता है H2O का मॉलिक्यूल्स। और जो है ना हमारे पास जो इंजाइम्स यूज़ होता है इस इंजाइम्स को हम कहते हैं लाइगेज, ठीक है। अब ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स है जो अटैच कर लेता है टू आर मोर देन टू न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल्स विच में फॉर्म्स अ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड।
ये है जो है ना वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। इसमें हमारे पास ये एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इस तरह ये दूसरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब दूसरा बॉन्ड्स हमारे पास है डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड है जो एक लॉन्ग न्यूक्लिक एसिड के चेन में जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना कंबाइंस होते हैं। अब दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द नाइट्रोजीनियस बेसिस। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो ये ओनली एंड ओनली प्रेजेंट होता है इनसाइड द नाइट्रोजीनियस बेसिस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम ये है कि वो दो मालिक्यूल्स को यानी दो न्यूक्लिक एसिड के मालिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेता है। और थर्ड वन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इनसाइड ओनली दोज न्यूक्लिक एसिड विच आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सच एज डीएनए। यानी इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए मालिक्यूल्स। अब देख ले फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ आरएनए है। तो आरएनए में जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की जो है ना मालिक्यूल्स या मोनोमर जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल हमने दो जो है ना चेन्स को इकट्ठा कर दिया न्यूक्लियोटाइड्स के। अब ये दो चेन क्यों किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड होगा जो इन दो चेन को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं, वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और रिमेंबर दिस वन के हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड the two nitrogenous bases. For example, this is an example, this is thiamine and this is adenine. And the third one is ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस एटम के दरमियान, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर इन एटम्स के दरमियान या फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन अगर इनके दरमियान बॉन्ड पाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी नाउन है कि थायमीन और एडेनिन के दरमियान हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान हमारे पास जो है ना वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और ये वो बॉन्ड है विद अटैच द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद ईच अदर। सो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि डीएनए में दो तरह के बॉन्डिंग या न्यूक्लिक एसिड में फॉर एग्जांपल हमारे साथ दो तरह के बॉन्डिंग्स होते हैं, एक होते हैं फास्फोडाइस्टर, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू बॉन्डिंग, देन यू विल सिंपल आंसर देम that phosphodiester bond is the bond with attach the nucleotides in the long chain of nucleic acid, while hydrogen bonding is the bond with attach the two long strand of nucleic acid with each other. And the second difference is that hydrogen bonding is present only inside the DNA because DNA is a single strand, and hydrogen bonding is not present inside the RNA because RNA is a single strand. और थर्ड डिफरेंस ये है कि हमारे पास फास्फोडाइस्टर बन जाता है पेंटोज शुगर के दरमियान एंड फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान, वाइल डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इनसाइड द नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब ये है हमारे पास डीएनए हेलिक्स। अब ये डीएनए हेलिक्स किसकी वजह से जो है ना वो होता है, ये हमारे पास होता है किस चीज़ की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये जितने भी बेसिस है, ये जो आपको कलर नज़र आती है, ये जितने भी बेसिस है, इन बेसिस के दरमियान हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जितने भी चेन्स है, ये तो लॉन्ग चेन्स है, इन चेन्स के दरमियान हमारे पास पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। अब ये न्यूक्लियोटाइड इन चेन्स के दरमियान जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। सो व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पॉलीमर्स टू मेक डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो है ना वो पॉलीमर्स बना लेते हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड विल बी आइदर डीएनए एंड आरएनए। द सेकेंड वन इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स के और भी टाइप्स है, एटीपी है, जीटीपी है, जो हमारे पास एनर्जी के लिए या एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और एज ए फ्यूल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हम जो है ना एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ट एज ए कैरियर ऑफ एक्टिव इंटरमीडिएट्स इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे, यूडीपी, ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एसएमपी।
ये जितने भी हमारे पास टाइप्स है, एक तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के दो मेन टाइप्स है जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। इसके साथ साथ ये इसके और भी टाइप्स है जिसको हम एडीपी, जीडीपी, एनएडीपी, एनएडीएच2, एफएडीएपी और अक़साम है जिसके और भी जो है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास एक कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स एफएडी, एनएडी और एनएडीपीएच, ये हमारे पास कोएंजाइम्स के थ्रू जो है ना एंजाइम्स की रिएक्शंस को जो है ना इन्हांस कर लेते हैं। एक इज ए सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी, ये हमारे पास जो है ना एज ए सेकेंड मैसेंजर यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे में, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे। इसके साथ साथ ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स के और मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे में भी जो है ना एज ए मीडियन इन्हांसर जो है ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के देखे हमने दो मेन जो है ना वो टाइप्स को पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया आरएनए और दूसरा हमने पढ़ लिया डीएनए। अब आरएनए और डीएनए के और भी बहुत से टाइप्स है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए के टाइप्स क्या है। न्यूक्लिक एसिड मेनली हमारे पास कितने हैं? हमारे पास दो है, एक है हमारे पास डीएनए एंड द सेकेंड वन इज़, एक हमारे पास डीएनए एंड द सेकेंड वन इज़ हमारे पास आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए। अब डीएनए और आरएनए के कितने टाइप्स है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, हमने पढ़ा कि आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, बट इन सम एक्सेप्शन केसेस देयर इज़ आल्सो पॉसिबल डबल स्ट्रैंड आरएनए। थर्ड वन इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, हमने पढ़ा कि डीएनए के हमारे पास डबल स्ट्रैंड है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी पॉसिबल है। डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए जो कि हमारे पास बैक्टीरियल्स या कुछ प्रोटोजोन्स के सेल्स में हमारे पास पाया जाता है, या सर्कुलर डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। यानी सर्कुलर डीएनए का काम क्या है? सर्कुलर डीएनए इज़ जस्ट लाइक अ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स पे जो डीएनए पाया जाता है इसकी तरह ये भी जो है ना वो अपना फंक्शंस अदा कर लेता है। इन ऑर्गेनील्स के अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे है जो खुद अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनील्स के अंदर हमारे पास पाया जाता है कौन सा चीज़? हमारे पास पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। यानी एक तो सर्कुलर डीएनए हमारे पास पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए हमारे पास पाया जाता है प्लाज्मिड्स के अंदर। कहाँ पे? सर्कुलर डीएनए हमारे पास पाया जाता है प्लाज्मिड्स के अंदर। दूसरा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास सर्कुलर जो है ना डीएनए पाया जाता है। एंड द थर्ड वन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनील सेल्स के अंदर जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स हो, जो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनील्स हो, जो अपने फंक्शंस को खुद जो है ना मेंटेन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी जो है ना वो हमारे पास पाया जाता है कौन सा? सर्कुलर डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज़ जस्ट लाइक अ क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल्स, दे मे हैव देयर ओन डीएनए विच इज़ सर्कुलर डीएनए and they act just like a chromosomes in the microorganism cells. Genes. So what is genes? Gene is a basic unit of heredity. Remember this one. Genes क्या है? ये basic unit है, ये basic unit है किस चीज़ की? ये basic unit है हमारे पास हेरिडिटरी, वरासत की। जीन हमारे पास वरासत की बुनियादी इकाई है। जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डीएनए में, एंड फॉर एवरी करेक्टर एंड एवरी फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स एंड जीन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डीएनए। तो जीन्स क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए is a nucleic acid containing the genetic instruction used in the development and functioning of all known living organisms with the exceptions of RNA viruses. जितने भी हमारे पास डीएनए है वो किसी भी जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं। तो डीएनए का वो पार्ट जो इन इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं वो क्या होते हैं? वो इसको हम कहते हैं जीन्स, विद द एक्सेप्शन ऑफ आरएनए वायरस। लेकिन इसमें यह है कि आरएनए वायरस के लिए डीएनए पे कोई जो है ना वो जीन्स प्रेजेंट नहीं होते। द डीएनए सेगमेंट्स कैरी दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए का वो पार्ट जो इन इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, इंफॉर्मेशन को जो है ना वो अपने अंदर सेव कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीन्स। लाइक वाइज अदर डीएनए सीक्वेंस
have structure purpose are involved in regulating the use of these genetic informations. जितने भी डीएनए होते हैं इसके ऊपर जीन्स का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है एंड दिस सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ देट डीएनए। यानी जीन्स क्या है? जीन्स हमारे पास विरासत की यूनिट है। जीन्स इज़ अ बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स विच स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द ह्यूमंस और अदर एनिमल सेल्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द surface of DNA and in every humans, every living cells there will be present DNA and on the surface of DNA there is present gene। डीएनए की फंक्शंस क्या है? हमने पहले भी पढ़ा कि डीएनए का फंक्शन सिर्फ ये है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है ना मेमोरी की, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर लेता है मेमोरीज़ की। ठीक है, डीएनए इज़ अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी जो है ना हम स्टडी कर सकते हैं, इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे पास स्टोर्ड होती है। कहाँ पे? हमारे पास स्टोर्ड होती है डीएनए में। डीएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की सिंथेसिस को भी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल डीएनए जितना इंस्ट्रक्शन देता है, अगर इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वहाँ पे राइबोसोमल्स आरएनए जो राइबोसोम्स के सरफेस पे अटैच होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो इन सीक्वेंस में जो है ना वो चेंज आ जाता है और इसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूटेशंस काज हो सकते हैं, जिसमें आरएनए डीएनए की कंट्रोल से बाहर हो के खुद अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट करके जो है ना वो एबनॉर्मल आरएनए प्रोडक्शन कर लेता है और फिर एबनॉर्मल आरएनए प्रोडक्शन जो है ना वो एबनॉर्मल जो है ना वो सिग्नल देता है राइबोसोम्स को और एबनॉर्मल प्रोडक्शन का शुरू होता है प्रोटीन्स की। तो डीएनए क्या करते हैं? डीएनए कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए। द थर्ड वन इज़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल्स। ये जितने भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो डीएनए के साथ स्पेसिफिक है, जिसमें हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन है जो स्पेसिफिक है ओनली विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जितने भी बेसिस है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, वो हर जो है ना सेल्स के लिए, हर सेल्स की प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइप में प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ आरएनए। आरएनए का फंक्शन सिर्फ ये है कि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को जो है ना रिसीव करके सेल्स मेम्ब्रेन के आउटर जो है ना इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर लेता है और राइबोसोम्स को जो है ना वो इंफॉर्मेशन दे के खास किस्म की प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है ना वो हेल्प करते हैं। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटीन बिल्डिंग अपैरेटस इन द सेल्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आरएनए कौन प्रोड्यूस कर लेता है? डीएनए क्योंकि डीएनए जो है ना वो आरएनए को इंस्ट्रक्शन देता है और वो इतनी आरएनए की प्रोडक्शन कर लेता है जितनी वो इंस्ट्रक्शन देता है। आरएनए की अब सिर्फ आरएनए की जो है ना ये फंक्शन है कि वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन को जो है ना रिसीव कर लेता है और प्रोटीन बिल्डिंग अपैरेटस, जिसको हम राइबोसोम्स भी कहते हैं, राइबोसोम्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प देता है। आरएनए आल्सो डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड। ये जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस है इसको प्रोड्यूस करने में प्रोटीन की जो है ना फॉर्मेशन में राइबोसोम्स की हेल्प करता है। मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आरएनए के हमारे पास 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल्स आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उसने डीएनए की जीन से रिसीव किया है, अब इन इन्फॉर्मेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना मोड इसके ट्रांसपोर्ट करके राइबोसोम्स तक पहुँचाता है और वहाँ पे राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं राइबोसोमल्स आरएनए और फिर राइबोसोमल्स आरएनए मैसेंजर आरएनए से इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके राइबोसोम्स को सिग्नल देता है कि स्पेसिफिक इस किस्म के स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है ना इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करे। आप जो है ना फंक्शंस ऑफ एडिनोसिन फॉस्फेट, जिसको हम एटीपी भी कह सकते हैं, ये भी न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। द न्यूक्लियोटाइड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो है ना ह्यूमन बॉडी में जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन है वो किससे हासिल करते हैं हम? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट से हम हासिल कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारे पास जो है ना बेसिक यूनिट है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है विद एटीपी एंड द ह्यूमन सेल्स यूज़ द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी to perform their different type of functions.
दूसरा क्या है, साइक्लिक AMP या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज़ अ मैसेंजर इन हार्मोन रेगुलेशन। साइक्लिक AMP ह्यूमंस बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन रेगुलेशन में जो है ना वो अपना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियोटाइड डिराइवेटिव सच एज NAD, we may call them nicotinamides. Adenine dinucleotide is used as a coenzyme in photosynthesis. NAD is coenzymes used as a coenzyme, and what is coenzyme we will study in upcoming lecture in the chapters of enzymes. ये photosynthesis में इस्तेमाल होता है. So thank you. This was all about the basics of nucleic acid. I hope the topic will be clear. So I recall briefly the topic from the start, that what is nucleic acid. Nucleic acids is a polymers of long chains of nucleotides, which is either DNA and RNA. So what is nucleotide? Nucleotide is a basic structure and function unit of nucleic acid, and each and every nucleotide is consist upon three parts. The one is pentose sugar, which is a central part in the structure of nucleotide. The other one is pentose sugar, and the third one is nitrogenous bases. Nitrogenous bases has two types. One is purine and the second one is pyrimidines. The one group phosphate is common in each and every nucleotides, while the two groups pentose sugar. Pentose sugar has two types. One is ribose and the other one is deoxyribose. Nitrogenous bases has their different types. Some are specific with DNA, some are specific with RNA. Similarly, DNA has a different type: single strand, double strand, and circular DNA. Just like them, RNA has two types. One is single strand and the other one is double strand RNA. DNA has the function that it stored a long-term memory of any organism's genetic information. The RNA function is that RNA receive informations from DNA and transport these genetic informations to cytoplasms and give instruction to the ribosomal RNA of ribosomes to form a specific type of protein. So this all was about the chapters of nucleic acids. I hope that the topic will be clear. Thank you very much.